Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Devo Vishnupada Brahmota Parivara Jagacharya Subodhara Sadasi Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Pramanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtaprayesha Bhatreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devahi Nandanaya Sa Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 13, sloka number 15. Please repeat. Abhibrat Aryamadandam Yadavad Agagakarishu
यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावद् आगकरेषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावद् आगकरेषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अभिभ्रदार्यमादण्डम् यावदागकारिषु यावदधारसूत्रत्वं सापादवर्ष शतं यमः अभिभ्रत् आर्यमादण्डम् यदावत् आगकारिषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावद् आगकारिषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावत् आगकारिषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावत् आगकारिषु सूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावद् आगकारिषु यदावत् आसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावत् आगकारिषु यावत् आदरसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावत् आगकारिषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः माताजी अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावत् आगकारिषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः अबिभ्रत् आर्यमादण्डं यदावत् आगकारिषु यावत् तदारसूत्रत्वं सबात् वर्ष शतं यमः. Word by word meaning.
Abhibrat, administered, Aryama, Dandam, punishment, Yadavat, as it was suitable, Ahakarishu, unto persons who had committed sins. Yavat, as long as, Tadara, accepted, Sutratvam, the tabernacle of Sutra, Sabat, as the result of curse, Varsasadam, for 100 years, Yamaha, Yamaraja. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Translation: as long as Vidura played the part of a Sutra, being cursed by Mandaga Muni, Aryama officiated at the post of Yamaraja to punish those who committed sinful acts. Purport: Vidura, born in the womb of Sutra woman, was forbidden even to be a party of royal heritage along with his brothers Dhritarashtra and Pandu. Then how could he occupy the post of a preacher to instruct such a land kings and Kshatriyas as Dhritarashtra and Maharaja Yudhishthira? The first answer is that even though it is accepted that he was a Sutra by birth, because he renounced the world for spiritual enlightenment by the authority of Rishi Maitreya and was thoroughly educated by him in transcendental knowledge, he was quite competent to occupy the post of an Acharya or spiritual preceptor. According to Sri Chaitanya Mahaprabhu, anyone who is conversant in the transcendental knowledge or the science of Godhead, be he a Brahmana or a Sudra, a householder or a sannyasi, is eligible to become spiritual master. Even in the ordinary moral codes maintained by Chanakya Pandita, the great politician and moralist, there is no harm in taking lessons from a person who may be by birth less than a Sutra. This is one part of the answer. The other is that Vidura was not actually a Sutra. He was to play the part of so-called Sutra for 100 years, being cursed by Mandaga Muni. He was the incarnation of Yamaraja, one of the 12 Mahajans, on the level with such exalted personalities as Brahma, Narada, Shiva, Kabila, Bhishma, Prahlada, etc. Being a Mahajana, it is the duty of Yamaraja to preach the cult of devotion to the people of the world, as Narada, Brahma and other Mahajans do. But Yamaraja is always busy in his Plutonic kingdom, punishing the doers of sinful acts. Yamaraja is deputed by the Lord to a particular planet, some hundreds of thousands of miles away from the planet of Earth, to take away the corrupt souls after death and convict them in accordance with their respective sinful activities. Thus, Yamaraja has very little time to take leave from his responsible office of punishing the wrongdoers. There are more wrongdoers than righteous men. Therefore, Yamaraja has to do more work than other demigods who are also authorized agents of the Supreme Lord. But he wanted to preach the glories of the Lord, and therefore by the will of the Lord he was cursed by Mandaga Muni to come into the world in the incarnation of Vidura and work very hard as a great devotee. Such a devotee is neither a Sutra nor a Brahmana. He is transcendent to such a divisions of mundane society, just as the personality of Godhead assumes his incarnation as a hawk, but is neither a hawk nor a Brahma. He is above all mundane creatures.
The Lord and his different authorized devotees sometimes have to play the role of many other lower creatures to claim the conditioned souls, but both the Lord and his pure devotees are always in the transcendental position. When Yamaraja thus incarnated himself as Vidura, his post was officiated by Aryama, one of the many sons of Kashyapa and Aditi. The Adityas are sons of Aditi, and there are 12 Adityas. Aryama is one of the 12 Adityas, and therefore it was quite possible for him to take charge of the office of Yamaraja during his 100 years absence in the form of Vidura. The conclusion is that Vidura was never a Sutra but was greater than the purest type of Brahmana. Hare Krishna. हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद मुंडक मुनि के द्वारा स्थापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर आर्यमान कार्य करते रहे। तात्पर्य विदुर शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे, तो भला वे धृतराष्ट्र तथा महाजन युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ऋषि मैत्रेय के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतः वे आचार्य पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने के लिए योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महाराजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि विदुर वास्तव में शूद्र न थे। उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के लोगों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार नारद, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज को एक विशेष ग्रह के लिए जो पृथ्वी के कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित है नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के बाद भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार दंड दें। अतः यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। अतः यमराज को भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता है। लेकिन यमराज को भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतः भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के साप के कारण उन्हें विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका मिला और महान भक्त की तरह निरंतर भगवान की सेवा में जुटने का मौका मिला। ऐसे भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, और संसारी समाज के लिए विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शूकर है न ही ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों के ऊपर है। कभी कभी भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका अदा करना पड़ती है, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं।
जब यमराज इस तरह विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक आर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। आर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतएव विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने के लिए आर्यमा का चुनाव की था। निष्कर्ष ये है कि विदुर कभी भी शूद्र न थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदानन्दं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वजनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। गौननगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कथा प्रारंभ के पहले सभी से अनुरोध है कृपया अपना मोबाइल सब लोग साइलेंट में या स्विच ऑफ कर देंगे। सभी अपना मोबाइल निकाल के उसको साइलेंट कर दीजिए। Hare Krishna. I welcome you all to the morning Srimad Bhagavatam class. मैं सुबह की भागवत की कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। So I took this service. I am not at all qualified. It is done doing for my own purification by the blessings of all the Vaishnavas. मैं इस सेवा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी शुद्धि के लिए ये सेवा ली है और आप सब वैष्णवों के आशीर्वाद से। This Srimad Bhagavatam, it is Amala Puranam, is given by statement Lord Sri Chaitanya himself. श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और इसको भगवान चैतन्य ने स्वयं किया। So the subject matter of the Srimad Bhagavatam is Lord Krishna and his devotees. श्रीमद् भागवतम का विषय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्त हैं। So there is no difference between the Bhagavatam and Lord Krishna. इसी विचार से कोई भेद नहीं है स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम। It is this Srimad Bhagavatam was compiled by the Srila Vyasadeva, who is the incarnation of Lord. श्रीमद् भागवतम का संकलन श्रील व्यासदेव द्वारा हुआ है, जो स्वयं भगवान के ही अवतार। So this Srimad Bhagavatam, it is literary incarnation of the Lord himself. ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। So when we are reading or hearing the Srimad Bhagavatam, we are
associating with the Supreme Lord Himself. जब हम लोग इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कथन करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही संग लेते हैं. So in the Bhagavatam it is said, Srunvadam Sakada Krishna Punya Sravana Kirtana. Whatever in general we are used to do the Punya karmas, the very important Punya karma is hearing the Srimad Bhagavatam and reading the Srimad Bhagavatam and listening about the Supreme Personality of Godhead, Krishna. श्रीमद् भागवतम में इसी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक 17 में लिखा हुआ श्रवणकाम सर्वथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन. तो यहाँ पर प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री के शुद्ध भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद. This Srimad Bhagavatam we should hear from the person Bhagavatam who is begins in his life as a pure devotee of the Lord. श्रीमद् भागवत ये पुरुष भागवत से हमको श्रवण करना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दिया. Whereas I am the conditioned soul, the sadhaka devotee, I do this service for my own purification. I request all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, please bless me so that I can do little bit in the service. क्योंकि मैं साधक भक्त हूँ और ये विषय शुद्ध भक्तों का है, तो मैं अपनी शुद्धि के लिए इस सेवा को कर रहा हूँ और मैं सभी उपस्थित वैष्णव उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ. So this Srimad Bhagavatam, when we are hearing, it is from the pure devotees. It gives our benefit for the spiritual life. ये जब हम लोग शुद्ध भक्तों से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको लाभ प्रदान करता है. So we should hear the Srimad Bhagavatam very carefully and attentively. श्रीमद् भागवतम का श्रवण हमको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए. So that is why from the starting itself it is told you should make silence your cell phones like this. तो इसीलिए हमने शुरुआत में ही सबसे अनुरोध किया कि कृपया आप अपना जो मोबाइल है उसको आप साइलेंट पे रखिए. Our Krishna Chaitanya Swami Maharaj used to say, Om Namo Bhagavate, cell phone band karo. यहाँ पर एक सन्यासी अभी पीछे आए थे परम पूजनीय कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, तो वो हमेशा कथा के पहले इस प्रकार से कहते हैं कि कृपया आप अपना फोन बंद करो. So when the cell phone come, normally people have only one cell phone. Now everyone have 2 or 3. तो शुरुआत में सबके पास में एक फोन होता था, आज के समय में सबके पास में 2-3 फोन. When I am going in the bus, I used to check. Everybody is watching the cell phone. Sometimes keep one, keep another one, like this. जब मैं बस से कहीं पर जाता हूँ तो देखता हूँ सबके पास 2-3 फोन है, तो कभी वो एक को देखते हैं तो उसको रख के दूसरे को देखते हैं. It is become the life and soul of the human being. तो ये हमारा जीवन और श्वास ऐसे बन चुका है. Whereas we should take the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita as our life and soul. जबकि हमको श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को अपना जीवन बनाना चाहिए. We should carry one hand Bhagavatam, one hand Bhagavad Gita, not a mobile. तो दो फोन की जगह पे अपने पास में भगवद गीता और एक में भागवतम को रखना चाहिए. Because it gives the ultimate benefit to the human being. क्योंकि ये जीव को परम लाभ प्रदान करता है. The aim of human being is achieve perfection in the human life. तो
मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर मनुष्य जीवन को सफल बनाना. So we should understand that how much importance we have to give in our life to this Bhagavatam and Bhagavad Gita. इसके लिए हमको समझना चाहिए कि हमको कितना महत्व इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में देना चाहिए. And not only for us, it is to our friends and family members, whatever, whoever may be, all human beings, we should give this knowledge. ये मात्र हमारे लिए नहीं, हमारे जो परिवार हैं या हमारे जो मित्र संबंधी हैं, ये सबके लिए समान रूप से आवश्यक है. So I welcome you all again, the fortunate souls who have come to hear the Srimad Bhagavatam today, Friday. मैं वापस आप सभी सौभाग्यशाली जो जीव आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं इस श्रीमद् भागवतम के श्रवण के लिए आपका स्वागत करता हूँ. You have left so many engagements in the holiday and come to listen the Srimad Bhagavatam, which is very, very important in our life. तो हमारे और भी कुछ कार्य रहते हैं, सभी लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो जीव है उसके लिए है वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण. So, glorification of Bhagavatam. Bhagavatam, it is to be glorified before we hear it. श्रीमद् भागवतम का हमको गुणगान करना चाहिए उससे कुछ श्रवण करने के पहले. Because it is our aim, it is our motto, it is our ultimate benefit. क्योंकि ये हमारा परम उद्देश्य और ये हमारा परम लाभकारी है. Today, we are speaking in this chapter, the 13th chapter also gives very important message, how to get liberation to the Dhritarashtra. तो आज जो हम लोग प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय से श्रवण कर रहे हैं, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कैसे धृतराष्ट्र उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है. See, in the monarchy system, the big thing is the king must be come from the royal family. जो पहले राज घराने हुआ करते थे, राजाओं की जो प्रथा थी, तो उसके लिए नियम था कि उनको ऐसे जो राजाओं का परिवार है उसी से उनको आना होगा. Here the Dhritarashtra, Pandu and Vidura all were brothers. यहाँ पर हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों भाई हैं. Same father but different mothers. इनके पिता एक है लेकिन माताएं अलग अलग हैं. So the Vidura was born to a servant maid, so he was considered as a Sudra and he was not given any in the royal part of the royal heritage. जो विदुर जी हैं वो शूद्राणी उनसे उत्पन्न हुए जो उनके घर में सेविका थी, तो इसके लिए उनको जो राज्य में किसी प्रकार का कोई पद उनको नहीं दिया. Here main thing, father is well versed, same person, but only mother is changed, whereas other two person, the mother is queens of the desh. तो पिता सबके एक ही थे, तो इनकी माता वो अलग थी और अन्य जो दो पुत्र थे वो उनकी जो माताएं थी वो रानियां. Here, whereas this is the condition for the material things. यहाँ पर हम लोग ऐसे देखें तो ये एक भौतिक विचार है. Whereas in spiritual things there is no qualification required. लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यदि हम लोग देखें तो वहाँ पर इस प्रकार की किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती. Whatever may be your position, you are an engineer, you are a doctor, you are a president or a prime minister or a beggar or a woman, whatever it is, you can be a devotee of the Lord. तो चाहे कोई इंजीनियर डॉक्टर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो किसी राज्य का, या कोई अन्य पद हो, या आप स्त्री शरीर या पुरुष शरीर में है, सबके लिए समान अवसर. Whereas in the material things, everything is required a qualification.
लेकिन वहीं पर हम लोग इस भौतिक संसार में देखें तो जो कुछ भी आपको यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको वैसी योग्यता की आवश्यकता होती है। If you are not 100% qualified, you are not entertained in the particular post or something like that. तो यदि आप किसी विशेष पद पर कार्य करना चाहते हैं तो जब तक आपकी वैसी योग्यता नहीं है आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा। Whereas spiritual things, you can see we are wherever level, so many levels of devotees are sitting here. But everything, our common aim to hear and listen about the Srimad Bhagavatam and serve to the Supreme Personality of Godhead. यदि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग देखें तो हम लोग अलग-अलग स्तर पर अपनी साधन भक्ति में प्रयासरत हैं। तो यहाँ पर सबका उद्देश्य एक ही है, बैठ करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। So you can know the importance of the spiritual knowledge. तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से ये जो आध्यात्मिक विषय है इसका जो गंभीरता है उसको समझ सकते हैं। So you should be given to everybody. और ये जो भागवतम का जो शिक्षा है ये सबको दी जानी चाहिए। Srila Prabhupada asked, is there any difficulty to chanting the holy name of the Lord or reading Bhagavad Gita and Bhagavatam? श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि क्या भागवतम भगवद गीता के अध्ययन के लिए या जप करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता है? Even illiterate people, just by having the Bhagavad Gita and Bhagavatam, just by taking it, touching it, and he will be benefited. यहाँ तक कि कोई भौतिक दृष्टि से यदि वो शिक्षित नहीं भी हो तो यदि वो श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता का स्पर्श भी करते हैं तो उससे भी उनको लाभ मिलेगा। Only thing we have accept the consciousness of the spiritual things. केवल हमको चेतना आध्यात्मिक रखनी होगी उससे हमको लाभ मिलेगा। So the reading Bhagavad Gita and Bhagavatam and getting the spiritual devotional service, there is no qualification required. श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। Here Prabhupada asked one question, whereas this Vidura is not allowed to become part of royal family, but how can he teach the spiritual knowledge to the royal persons, Maharaj Yudhishthira and Dhritarashtra? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक प्रश्न के रूप में अपने तात्पर्य में लिखा है कि जब विदुर वो शूद्र के स्तर पर थे बाह्य दृष्टि से तो कैसे वो योग्य थे धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर को भी ज्ञान देने के लिए? So you can understand this spiritual knowledge is related to the soul, not to the body. The body, what we have present, it may be different levels, but the soul inside it's same, which can attain the perfect knowledge about the relationship him and the soul, supreme soul. यहाँ पर हमको समझना होगा कि ये जो आध्यात्मिक विषय है ये आत्मा के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर नहीं। तो जो कोई भी इसको प्रयास करता है, जो भी जीव आत्मा के स्तर पर इसमें आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ये समान रूप से अवसर देता है। Here Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Chaitanya Charitamrita, one sloka it is come, Kiba Vibra Kiba Nyasi Sutra Kena Naya E Krishna Tattva Veta Se Guru Hai. Whether one is a Brahmana or Sannyasi or Sutra, regardless of what he is, he can become a spiritual master if he knows the signs of Krishna. चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य वो कहते हैं कि ये यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के विषय में यदि वो जानता है, उनकी भक्ति में युक्त है, तो अन्य कोई योग्यता की इसमें आवश्यकता नहीं होती है कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है, वो योग्यता फिर इसमें नहीं देखी जाती। This is the important message from the Lord himself, so that everyone, there is no restriction
to becoming a devotee or doing the devotional service. ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा स्वयं भगवान से है। यदि इस प्रकार से हर कोई जीवात्मा ये जो भक्ति का मार्ग इसके लिए सब को आगे बढ़ सकते हैं, सबके लिए समान रूप से अवसर देता है। So in the same sloka, in the purport, Prabhupada quote another sloka from the Padma Purana, Na Sutra Bhagavat Bhaktaste Abhi Bhagavatotma Sarva Varneshu De Sutra Ye Yena Bhakta Janartana. That one who is actually advanced in spiritual knowledge of Krishna is never Sutra. Even though he may have been born in Sutra family, however, even if a Vibra or a Brahmana is very expert in the 6 Brahmanical activities and is well versed in the Vedic hymns, he cannot become a spiritual master unless he is a Vaishnava. ये अन्य श्लोक पुराण में आता है जहाँ पर ये बताया कि सत्कर्म निपुणो विप्रो, तो कोई जो ब्राह्मण के 6 कार्य है उसमें निपुण भी हो, लेकिन यदि वो वैष्णव नहीं है तो वो योग्य नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि कोई भगवान का भक्त है तो चाहे वो किसी भी स्तर पर उसका बाह्य दृष्टि से जन्म हो, वो भगवान की भक्ति के लिए और गुरु बनने के योग्य है। Another sloka in the Bhagavatam, the same sloka mentioned 7:11:35, Yasya yal lakshanam proktam bumso varnabhiyan jaham yat anyatrabi srishtayeda tat tenaiva vinitiset. If a person is born in a Sutra family but has all the qualities of a spiritual master, he should be accepted not only as a Brahmana but as a qualified spiritual master also. ये श्लोक भागवतम में भी इसी प्रकार का एक श्लोक आया है, 7वां स्तर 11 अध्याय और श्लोक 35। यदि कोई उपर्युक्त प्रकाश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वो भिन्न जाति का क्यों न हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। So here Vidura, even though born in a sutra, as a sutra, he renounced the worldly things and accepted spiritual master as a Rishi Maitreya, and he was trained by the Rishi Maitreya in the transcendental knowledge very thoroughly. तो भले ही वेदुर को सूत्र से, लेकिन उन्होंने मैत्रेय मुनि को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया और उनसे उन्होंने ये जो भक्ति का जो पूरा विषय है इसको उन्होंने ग्रहण किया। So he was quite competent to occupy the post of an acharya or spiritual master. इसके लिए वो पूर्ण रूप से योग्य थे आचार्य या आध्यात्मिक गुरु का पद ग्रहण करने के लिए। The great politician and moralist Chanakya Pandita also says that there is no harm taking lessons from a Sutra person. तो इसी प्रकार की शिक्षा चाणक्य नीति में चाणक्य पंडित भी देते हैं कि यदि अच्छा शिक्षा किसी से भी मिल रही हो तो उसको लेने में कोई हानि नहीं है। Sri Chaitanya Mahaprabhu also says to Ramananda Raya during his discussion, this Krishna consciousness is more important than caste. तो भगवान चैतन्य जब रामानंद राय से उनकी चर्चा हो रही थी तो उसमें भी वो कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावना भाविक जो विषय होते हैं ये किसी जाति और इससे बहुत ऊपर का विषय है। It is not in the bodily platform, it is in the soul platform. ये शरीर के स्तर पर नहीं है, जीवात्मा के स्तर पर। Unless we accept this principle of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Krishna conscious movement, we cannot spread the Krishna conscious throughout the world. यदि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोग पूरे विश्व में इस कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकते।
This principle is solely spread by our founder Acharya Srila Prabhupada throughout the world. श्रील प्रभुपाद ने इस शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार है वो पूरे विश्व में किया, तो हमारी संस्थापक आचार्य। We can see in our Krishna conscious movement throughout the world there are so many people are American, Russians, Africans, Australians, irrespective of the country or irrespective of the religion, even Muslims, Christians, there are so many Christians, foreigners. Everybody is following this. हम लोग देखते हैं हमारे इस कृष्ण भावना आंदोलन में सभी देशों से, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अफ्रीकन कोई देश हो, सभी जगह से भक्त वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। So we can know this Krishna consciousness or science of Krishna is very, very important. It is on the platform of soul, not in the body. तो हम लोगों को समझना है कि ये जो कृष्ण भावना का विज्ञान है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये जीव आत्मा के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर नहीं। This is the basic lesson of Bhagavad Gita. We are not body, we are spirit soul. तो भगवत गीता का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ज्ञान है कि हम लोग जीव आत्मा है, शरीर में। So we should give more important to this knowledge of the soul. तो हमको ज्यादा जो महत्व है वो जीव आत्मा का ज्ञान है उसको देना चाहिए। So Vidura accepted Maitreya Rishi as a spiritual master and learned the art of Krishna consciousness, science of Krishna. तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को अपना गुरु स्वीकार किया और उन्होंने इस कृष्ण भावना का जो ज्ञान है वो उनसे। Vidura is not a Sutraman, actually he is an incarnation of Yamaraj. शूद्र वास्तव में वो विदुर जी वास्तव में शूद्र नहीं है, वो यमराज के अवतार। He is the one of the 12 Mahajans. वो 12 महाजनों में से एक। So from the Bhagavatam we can understand the 12 Mahajanas: Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Narad, and Prahlad Maharaj, Bhishma Dev, and Bali Maharaj, Janaka Maharaj. Janaka Maharaj also. There are so many persons, 12 persons who are authorized by the Supreme Personality of Godhead to spread this devotional service to the conditioned souls. भगवान के द्वारा 12 लोगों को चयनित किया गया है, जिन्हें हम लोग 12 महाजन कहते हैं, कि वो इस कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर सकते हैं, जिनमें ब्रह्मा है, नारद है, शिव है, कपिल है, भीष्म, जनक, प्रहलाद, बलि और यमराज स्वयं। तो ये इस प्रकार से ये 12 महाजनों के नाम श्रीमद् भागवतम के संत साहिब में दिए हुए हैं। So such a great personality, how could he come as a Sudra? तो जो इतने महान व्यक्तित्व थे वो कैसे एक शूद्र के रूप में आए? So he was cursed by the Mandaga Muni and तो इनको मंडूक मुनि का शाप। so actually this Yamaraj is Mahajan. He has to preach this science of Krishna consciousness. But whereas he was debuted by the Supreme Personality of Godhead to the post of Yamaraj in the Yamaloka, so that he can punish the conditioned soul, the sinner of this material world. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, तो उनको इस कार्य के लिए भगवान ने रखा था। तो दुष्कर्म करने वालों की संख्या, और फिर वो आगे ऐसे लिखते हैं कि यमराज को भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते हैं। अतः भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें विदुर के रूप में इस पृथ्वी पर आने का मौका। ये तो कार्य अपने तात्पर्य में
This Bahodam, it is they said, so it was told 5,000 years ago. From that period, these sinner people are more. Even now, Kali Yuga, now it is more and more. तो शिव भागवत जब से लिखा है तब यहाँ पर लिखा है कि जो बुरे काम करने वाले हैं वो अधिक हैं अच्छे काम करने वालों से। तो यदि हम लोग कलयुग में देखें तो ऐसे लोगों की संख्या तो और भी बढ़ रही है। So Brahma is always very busy in the doing the punishing the sinners and the wrongdoers of the material world. तो यमराज का कार्य है कि वो जो बुरे काम करने वाले लोग होते हैं उनको दंड देने के कार्य में वो बहुत व्यस्त रहते हैं। But his desire is to preach the Krishna consciousness. लेकिन उनकी इच्छा है भगवान की जो भक्ति है उसका प्रचार करने की। So by the will of the Lord, the Mandaga Muni cursed this Yamaraj to take birth as a Vidura. तो भगवान की इच्छा से मंडूक मुनि ने उन्हें श्राप दिया जिससे वो विदुर के रूप में वो जन्म लिया। See, the story is how the Mandaga Muni cursed the Yamaraj is in the kingdom. Some thieves took away the property of the kingdom material and ran away towards the forest where the Mandaga Muni was meditating in the forest area nearby his ashram. So these thieves went and the police were chasing these thieves. These people ran away inside the ashram of Mandaga Muni and kept the materials there and hiding inside. ये एक कथा आती है कि एक समय में कुछ चोर को कहीं राजा का जो महल है वहाँ से कुछ चोरी करके लेके जा रहे थे और पुलिस से बचने के लिए वो दौड़ते हुए जो मंडूक मुनि है उनके आश्रम के अंदर चले जाते हैं और जो भी चोरी की वस्तु थी वो वहाँ पर उसको रखते हैं। So the police people, they came and asked the Mandaga Muni, whereas this Mandaga Muni was in deep meditation, not listening. But then police went inside the ashrama and catch the thieves and the material. तो मंडूक मुनि वो ध्यान में थे तो जब पुलिस इन चोरों को ढूंढते हुए वहाँ तक आती है तो उनसे पूछती है लेकिन वो बहुत गहरे ध्यान में थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये लोग अंदर जाते हैं तो वहीं पर वो देखते हैं जो चोरी की वस्तु और ये चोर वहीं पर उपस्थित थे उनके आश्रम के अंदर। So the police took away the materials and thieves along with Mandaga Muni. तो पुलिस ने क्या किया उस सामान को उन चोरों को अपने साथ ले गए साथ में मंडूक मुनि को भी ले गए। So they were thinking he is also one of the partner of the thieves group. इनको क्या लगा कि ये भी इनके ही साथ के सदस्य हैं। The king punished all those in the court. That time it was putting the person thieves in the sharp and pierce in the body to death, up to death. उस समय वो दंड दे रहे थे कि उनको उनके शरीर पे यातनाएं दे करके उनको मृत्यु दंड दे रहे थे। When Mandaga Muni was put like this, but he was not become dead, but he was alive. Everyone surprised this police wala. Then the news reached to king. The king reached the spot and he immediately understood he may be some important rishi or something like that. He make a burden with the Mandaga Muni and released from that. तो अन्यों को जब दंडित करके उनको मृत्यु दंड दिया गया तो इसी प्रकार की यात्रा जब मंडूक मुनि को दी गई तो यात्रा देने के बाद में भी वो जीवित थे तो वो लोग सब अचंभित थे और ये समाचार जब राजा के पास में जाता है तो राजा वो वहाँ पर आते हैं और उनको देख करके उनको ज्ञात होता है कि ये तो कोई ऋषि हो सकते हैं तो ये सोच करके फिर वो उनको मुक्त करते हैं। So Muni, Mandaga Muni was curiosity how it has happened to me
So he went to Yamalok and inquired the Yamaraj what has happened. तो मनु मुनि उनको जिज्ञासा हुई कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो ये जानने के लिए वो यमलोक में जाते हैं और यमराज से प्रश्न करते हैं। Yamaraj replied that in the childhood time you will make small ants and by putting straws in the tail you make play with them. So for that sin you have been punished. तो यमराज ने बताया कि आपके बचपन में आपने एक चींटी की आंख में कुछ तिनके से भेद कर दिया था, तो इसके लिए आपको ये दंड मिला। So immediately Mandamuni make a cursing to the Yamaraj. In the childhood time, whatever we are doing, it's playful things. So how you can make punishment? So he cursed the Yamaraj. You should have take birth as a Sudra for 100 years something. तो मंडोदरी उस समय वो यमराज को उन्होंने तुरंत करके श्राप दिया कि आप एक बच्चे को कैसे ये श्राप दे सकते हैं। उस समय कौन ये जानता है कि इसका कोई ऐसा प्रभाव होगा। तो आपने ये एक बालक को श्राप दिया है, तो इसके लिए मैं आपको श्रापित करता हूँ कि आप 100 वर्षों तक शूद्र के रूप में आपका जन्म हो। So from this we can understood whatever we do, the sinful activities, ever small thing or big thing, we will be punished in the court of Yamaraj or in the kingdom of the Lord. तो इससे हम लोग ये शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में हमसे कोई यदि कोई त्रुटि होती है, कोई पाप का कार्य होता है, तो उसका दंड या तो यमराज या भगवान के द्वारा वो दिया जाता है। In the material world, we can bypass our whatever we can do, we can bypass by giving money or something like that. Whereas in the spiritual world, it is not possible. Everything is under his instruction. The demigods, they were looking after each and everything of our activities. It will be recorded, it will be shown to us during the judgment time after the death when we go to Yamalok. इस संसार में हम लोग देखते हैं यदि किसी के पास पैसे का बल है या पैसे की, तो वो कुछ भी गलत करके भी वो छोड़ जाते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति का नियम है उससे ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं इस जीवन में, उसका लेखा जोखा सब रहता है। और जब ये शरीर छूटने के बाद जीव आत्मा उसका समय आता है, उसमें क्या कार्य किए, तो उसके अनुसार उसको फिर वैसा फल अवश्य देगा। We can understand even the small child, whether he or she know it is will be punished if he touch fire without knowing this. Whether you know or don't know, it will be given punishment. जैसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी हो, यदि वो गलती से भी अग्नि में अपना हाथ डालता है तो अग्नि उसको भी जलाती है। तो चाहे कोई जान के और अनजाने में भी अग्नि से वो उसका संपर्क होता है, तो अग्नि वो दोनों को समान रूप से ही वो उसका प्रभाव देती है। Another thing, you can understand this from the Yamaraj as a Vidura, because before he was the conscious of servant of the Lord. So after coming to Vidura, as a Vidura Sutra man, that conscious is there. So immediately he go to approach a spiritual matter for enlightenment. तो क्योंकि वो यमराज है और वो एक महाजन है, तो वो किसी भी शरीर में रहते हुए उनकी चेतना फिर भी भक्ति थी, और इसके लिए वो अभी प्रकार से एक सूर्य होते हुए भी वो भगवत चेतना। So we have to understand this spiritual knowledge, whatever we accumulated in this life or previous life, it will be continued in the further lives. So it will be more beneficial to us. Whatever we do, the Neha Vikramana Susti, whatever small things in the devotional service we do, it will be benefited for our further spiritual enlightenment. इससे हम लोग ये शिक्षा ले सकते हैं कि
जो कुछ भी हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करते हैं तो इसका क्षय कभी नहीं होता है। ये सदैव उस जीवात्मा के साथ में आगे चलता रहता है। So when Yamaraj gone like this, that post was officiated by Lord, the sons of Aditi and Kasyapa, this Aryama. जब यमराज वो विदुर के रूप में आए तो उनका जो कार्य है वो कश्यप और अदिति के पुत्र आर्यमा है, उनको वो सेवा उस समय के लिए दी गई। So here there are 12 Adityas. One of the Aditya is Aryama. He was given that post who look after this post of Yamaraj for punishing the condemned soul in the Yamalok up to when return the Yamaraj. यमराज की वापसी तक ये जो 12 आदित्य हैं उनमें से एक आर्यमा, इनको ये कार्य दिया गया था जब तक वो वापस आते तब तक के लिए जो बुरे कृत्यों को करकर जिनके लिए दंडित होने का जो कार्य है वो उनको दिया जाता है, दंड दिया जाता है, तो उसके लिए वो कार्य करें। From this sloka we can understand the spiritual consciousness is not lost. Whatever the devotional service we do in this life, it is not lost. It will be carried over to next life, so that we can develop our the devotional service and the soul consciousness further. तो इस श्लोक से हम लोग ये शिक्षा ले सकते हैं कि जो कुछ भी भक्ति हम लोग करते हैं इसका क्षय नहीं होता है और आगे के जीवन में उसी चेतना में हम आगे बढ़ सकते हैं। So in our life we should endeavor for this type of the important knowledge by reading this Bhagavad Gita and Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita, so that elevate ourselves to higher level. तो इसलिए हमको सदैव प्रयास करना चाहिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत इसकी जो शिक्षाएं हैं इनको समझ के और जीवन में अपनाने का, जिससे कि हम लोग भी अपने जीवन में प्रगति करते हैं। That is why this spiritual knowledge is eligible for everyone. That is why Mahaprabhu told यारो देखे यारो कहो कृष्ण उपदेश। ये सबके लिए ये आध्यात्मिक जो विषय सभी जीवात्माओं के लिए समान रूप से ये दिया गया है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसके लिए कहते हैं जिसको ये ज्ञात है, जो इसको जानता है, तो या तो देखे कार्य को कृष्ण उपदेश, तो उनको जिस किसी को भी आप देखें आपको इसे उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो भी इसको ग्रहण करने के लिए अधिकारी है। By following the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we will be benefited and we will also benefit others. भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो निर्देश है या उनकी जो कृपा है उसके कारण हमको भी लाभ मिलेगा और जो कोई भी श्रवण करेगा उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा। Same like Prabhupada ji given the whole world the Krishna consciousness, he also become a perfect soul, servant of the God, and make others also servants of the God. जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लेके तो उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, तो वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बने और जो कोई भी उनके निर्देशों का पालन करेगा तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है। So now it is in our part how we should take this in our life. तो अभी ये हमारे ऊपर में निर्भर करता है कि हम कैसे इसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। Are everybody ready to do this devotional service sincerely in our life? क्या सभी लोग इसको अपने जीवन में गंभीरता पूर्वक भक्ति का जो विषय है इसको करने के लिए तैयार हैं? Just by simply chanting, we can start our service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो भी विराम दे रहे हैं चर्चा को, यदि किसी की कोई जिज्ञासा प्रभु जी, सुनंदन प्रभु जी and Ramanarjan Prabhu ji or any other devotees want to add anything? हरे कृष्ण। यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो लोग प्रश्न पहले ले सकते हैं।
or any question Prabhuji asking, our famous intelligent person. बात समझ में नहीं आई कि एक लाइफ इस लाइफ में मैं स्पिरिचुअल कर रहा हूँ तो नेक्स्ट लाइफ में भी उसका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपने बताया कि इस लाइफ में मैं स्पिरिचुअल चीज कर रहा हूँ तो नेक्स्ट लाइफ में इट विल गो, तो लेकिन अभी जो एग्जाम्पल है यमराज जी का और विदुर महाराज का, तो यमराज जी तो सनातन के खिलाफ थे, गौ माता के खिलाफ थे, लेकिन विदुर बिल्कुल स्पिरिचुअल, ये पॉसिबल कैसे होगा? नहीं, यमराज कभी भी खिलाफ नहीं थे। यमराज भगवान के लिए सेवा कर रहे थे कि जो बुरा काम कर रहे हैं उनको दंडित करने की उनको सेवा थी, लेकिन वो तो महान है। उनका कभी भी ऐसा नहीं आया कि वो किसी को अपनी तरफ से किसी को दंडित करने के लिए यमराज ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे। जिन्होंने ऐसे दंडनीय कृत्य किए हैं उनको दंड देने के लिए भगवान ने उनको ये सेवा दी और वो अपनी सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं अभी तक जितने बार यमराज जी का फोटो देखा वो तो फैस पे ही बैठे वो दिखाएंगे। देखिए, आप बुरा काम करेंगे तो उसको देख के ही आपके अंदर में भय आएगा, तो आप नहीं करेंगे। तो उसको दिखाने के लिए जब वो उस सेवा को करे तो वही स्वरूप उनका दिखाएगा। नहीं, जैसे आप पुलिस की ड्यूटी में है, वहां पे जाके आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन आप पुलिस की ड्यूटी में भी वैसा ही करेंगे तो कौन आपसे करेगा? तो पुलिस को ऐसा दिखाया जाता है कि बस इसके सामने मेरे को कुछ नहीं करना है, तो यमराज वो उस समय अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से भी वैसे ही व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो तो महाजन है और उनको कष्ट होता है। देखिए, भगवान को कष्ट होता है और भगवान के भक्तों को भी कष्ट होता है, किसी को दर्द देने में उनको कोई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप है, जैसे कोई माता पिता है, जो बच्चा है, यदि वो माता पिता की बात नहीं मानता है, हमेशा वो नहीं शरारत करता रहता है, तो उसके हित के लिए माता पिता कभी उसको दंडित करते हैं। उसमें भी माता पिता का वो कृपा उसमें नहीं, माता पिता की उसमें कृपा है कि उसको सुधारने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वैसे ही यमराज वो तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो उनका कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं है कि वो किसी को दंडित करने के लिए ऐसा करें, ऐसा नहीं है। मतलब प्रकृति में भी अगर मैं गाय का दूध पी रहा हूँ तो मैं किसमें जाता हूँ, पॉजिटिव में, और भैंस का दूध पी रहा हूँ तो मैं आपकी तरफ भी जाता हूँ, नर की तरफ भी जाता हूँ, इसलिए उनको भी भैंस के इसमें बैठा हुआ दिखाई जाता है। तो इस समय तो ये तो हमको देखिए, भगवान ने हमको सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है। भगवत गीता भी हमारे पास में है, नहीं ऐसा नहीं अवसर नहीं है। हमारे पास ऋषि मुनि है, हमारे पास भक्तों का संघ है जहाँ पे हम लोग अच्छे मार्ग पे जा सकते हैं। भगवान ने पूरा अवसर दिया, लेकिन यदि आप उसको चूक करके, जो गाय का दूध है, अमृत है, जो हम लोग यहाँ पे बैठे, उसको छोड़ करके आप भैंस का दूध, मतलब कि आप जाके शराब में और इसमें वहां पे आप जाएंगे तो नहीं, उसमें किसका दोष है? प्रकृति तो उसको आपके कार्य के अनुसार ही वो अपना दंड आपको देगी, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। नहीं, पुलिस अच्छे लोगों के लिए सहायता करने के लिए है, वही पुलिस बुरे लोगों को दंड देने के लिए है। पुलिस का उसमें कोई ऐसा आप उनको नहीं कह सकते कि वो अच्छे हैं या बुरे, नहीं, वो समान है। अच्छे करेंगे तो आपकी सहायता करेंगे समाज में, आप बुरा करेंगे तो दंड देने के लिए भी वो है। तो वैसे ही भगवान की व्यवस्था है। ठीक है, तो Hare Krishna. We have seen so many times during the class, the one who is always introduce the person who is giving the class. Hare Krishna. Nice class. I just want to ask one question. We have seen congregation as well as the congregation also in some particular in other temples also. During the class begins, so the one who is organizer
managing director. He always introduced the speaker about his material qualifications during the before the class. But you have said in the spiritual world there is no material qualification, and in the spiritual world there is no material qualification. In the material world only the qualification required like this. So is it correct to introduce the one who is sitting in the vessel? प्रभु जी गुलाम करेगी सर, वो प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी जो वैष्णव जब वो कथा वाचक की सेवा करते हैं तो उनका जब परिचय दिया जाता है तो उनकी भौतिक जो योग्यताएं हैं उसको भी हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर पूरी जो चर्चा थी उसमें प्रभु जी ने ये बताया कि जो आध्यात्मिक जीवन है उस आध्यात्मिक जीवन में जो भौतिक योग्यता है वो बिल्कुल उसको आवश्यकता नहीं है। हर कोई वो समान रूप से योग्य है अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो फिर मंदिरों में ऐसा क्यों किया जाता है कि उनकी जो भौतिक योग्यता है उसको भी बनाया जाए, ये उनका प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये सामान्य सा एक हमारा एक चेतना होती है। यदि हम लोग बोले कि ये जो व्यक्ति है ये बेरोजगार और ये बिल्कुल कुछ काम नहीं है इनके पास में और ये कथा करना आप बोलेंगे ऐसे व्यक्ति से क्या सुन। लेकिन यदि आप ये बोलेंगे कि भौतिक रूप से ये इतनी जिम्मेदारी इनके ऊपर में है, ये भौतिक रूप से इतने शिक्षित हैं और इतनी इनकी योग्यताएं हैं, ये इतनी इतनी सेवाएं करते हैं, तो हमको विचार आएगा कि देखिए मैं तो उस मेरी जो भौतिक योग्यता है वो तो उतनी नहीं है। और ये जो व्यक्ति हैं जब इनके पास में भौतिक रूप से ये सब जो वस्तुएं हैं ये इनके पास में होते हुए भी ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मुझे भी उससे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि देखिए जो बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर पे है वो उनके आध्यात्मिक योग्यता को देखेगा कि आध्यात्मिक रूप से योग्य है, ये कथा दे रहे हैं तो मुझे इनसे वो शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो भौतिक, अभी हम सब तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो कुछ लोग उससे भी आकर्षित होंगे भगवान की भक्ति की तरफ। तो उद्देश्य ये है कि ये के प्रकार हर कोई जीवात्मा वो भगवान की सेवा के लिए आकर्षित हो। तो यदि किसी की चेतना में ऐसा कि उनके भौतिक, हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, ऐसे किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भक्त इसमें ऐसे भी होते हैं कि जो भौतिक रूप से किसी को योग्य जानते हैं तो उनके समीप जाकर के उनसे बात करने का, उनके साथ में मित्रता करने की उनकी इच्छा रहती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कहीं ना कहीं तो उनकी भौतिक योग्यता से आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं उनकी भौतिक योग्यता से भी आकर्षित होके धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बुराई है। तो वो उद्देश्य, this is the purpose why they just narrate their material qualification, because different people, different souls, they have a different mindset. So everyone should ultimately to be attracted to the devotional service. So somehow they will begin their service by attracted of his material qualifications, and in due course he will be purified and he will become a pure devotee. That day definitely he will also come to know this material qualification has no meaning. It is like why Arjuna wanted Krishna to show the Virat for the mundane people to understand the greatness. हरे कृष्णा प्रभु जी जी मोबाइल का बात हुआ तो मेरे को सुना गया ये हम लोग मोबाइल यूज करते हैं जी, कम से कम यूज करना चाहिए। यूज करते हैं